अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान में दो सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने कहा कि 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान में इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवा दिए जाने चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन को भी डेट तजवीज़ कर दी है। इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने का फ़ायदा क्या होगा, या फिर मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है महंगाई की, इसमें नुकसान क्या होगा, आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं। अभी जी यहाँ पे कुछ शहरी बैठे हुए हैं और चाय शाय पी रहे हैं। इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि ये बड़े सुकून से चाय शाय पी रहे हैं, इनके इल्म में है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है सारों के, ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है मालिक। ठीक है जी, आप ठीक है जी? शुक्र है मालिक, शुक्र है, सब ठीक ठाक है। चलिए अल्लाह ये शुक्र बनाई रखे, अल्लाह आपको ठीक ठाक रखे। तो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, सदर ने डेट दे दी है जी, दे दिए तो होने चाहिए टाइम पे, इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए। इंशाल्लाह होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं, ये वक्त पे इलेक्शन होने का फ़ायदा क्या है और अगर नहीं होते तो नुकसान क्या है? इस बारे में ये भाई बताएंगे। इस बारे में भाई बताएंगे, आप बताएंगे। आप इस तरफ हो जाए जी, आप उस तरफ हो जाए, इधर आ जाए जी, आप इधर आ जाए मेरे पास। नहीं फसाता इन्होंने देसी जब। हाँ जी, हुण हुक्म करो। मुझे बताएं कि अगर तो वक्त पे होते हैं इलेक्शन तो फिर क्या, जे टाइम पे हो जाते हैं इलेक्शन फिर की फायदा है, तो जे टाइम ਤੇ नहीं ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ 60 ਅਰਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਤਾ ਤੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੱਤਾ ਤੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? खान साहब का बैठना उठना ठीक है जी। खान साहब हैंडसम है इसलिए भाईजान उनको सपोर्ट करते हैं जी। जी बस मुंडा सोना है खान ता सपोर्ट करते हैं। ਟਲੀਆਂ ਬੰਦ ਬਾਇਆ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਠਾ ਬੱਠਾ। ਅੱਜ 72 ਸਾਲਾ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਸਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਔਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਂਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਅਚਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਈਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅੱਜ 150 ਰੁਪਿਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੱਧ ਘਿਓ। ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਸੂਸੀ ਐਲਾਨ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੌਤ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ? क्यों नहीं फाड़ सकते लोग, की वजह? ये मना के जी चौधरी साहब को हम यहाँ पे ले आए हैं, आप इनसे पूछते हैं। सर जी तो हम दसो की दस? मैं 79 ਦਾ ਭਰਤੀ ਹਾਂ। अच्छा पहुंच 95 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। अच्छा ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। जी हकीकत है। ਲਾਹੌਰ ਅਸਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੱਕ 25 ਰੁਪਏ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਅਸਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ। ਅੱਜ 18 2022 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। बुनियादी असूल ही पेट्रोल है। पेट्रोल डीजल है, अगर पेट्रोल नहीं है गैस नहीं है तो पाकिस्तान कितने जाएगा? ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। मोदी नहीं बांध रहे, क्यों? मालकान के फायदे हैं ना। मैं आपको जी बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ, एक बड़ी मज़ेदार कहानी था सुनाना। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत थी, वो बूढ़ी औरत एक देसी घी की गड़वी समझते हो ना, देसी घी होती गड़वी, वो चौक के ले जा रही थी। वो देसी घी की वो गड़वी उठा के लेके जा रही थी। उनसे किसी ने बाज़ार में पूछा कि माँ जी किधर जा रही हैं? वो अम्मा ने कहा कि ये 1 किलो देसी घी है, इसकी गड़वी है, ये मैं बाज़ार लेके जा रही हूँ, उसको बेचूंगी, बेच के अपनी बेटी के लिए कपड़े लेके आऊँगी। वो अम्मा गई, जाके गड़वी बेची, अपनी तीवा से कपड़े लेके चली गई। उसके बाद कुछ साल बाद, 8-10 साल बाद, वही अम्मा दोबारा वही 1 किलो की गड़वी लेके जा रही थी। उसने जाके कहा माँ जी गड़वी किधर लेके जा रही हैं? उसने कहा बाज़ार लेके जा रही हूँ, इसको बेचूंगी, अपनी बेटी के लिए कपड़े भी लूँगी, दुपट्टे भी लूँगी, अपने बेटे के लिए भी कपड़े लूँगी। यानी वो घी की कीमत इतनी बढ़ गई थी, 10 साल में इतनी बढ़ गई थी। 10 साल में घी की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, अम्मा की आमदन भी बढ़ गई, और अम्मा की आमदन से वो जो मुआशरे में अम्मा ने चीज़ें लेना शुरू की वो भी ज़्यादा आना शुरू होगी। आज इसका उल्टा हो रहा है, आज हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है लेकिन आमदन किसी की नहीं बढ़ रही। किसी की नहीं बढ़, सिवाय सरकारी अफसरों के, और किसी की नहीं बढ़ेगी। आज 40 रुपए का पराठा है। 40 रुपए का हो गया जी। ये चाह का कप 5-10 रुपए का होता है, कितने का? 40 रुपए का। 40 रुपए का। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 4000 ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? 100 ਮਣ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਸਭ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ 100 ਮਣ ਲਵੀ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੀ? ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਗਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ 15 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ 200 ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 200 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ 200 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਲਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਤੀ। ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਆਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, 10 ਸਾਲ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਰਦਾਰ। ਅਸਲ ਗਰਦਾਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਆਲਮੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, 60 ਅਰਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। 60 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 60 ਅਰਬ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਅਦਲੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ IMF ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਤਲ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਤਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, 100% ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਪਿਆਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਏਗਾ। ਆਪ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਾਤੀ ਕਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਐਂਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਐਂਕਰ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਂਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਹੁਕੂਮਤ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਚੋਂ ਆਏ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸਤਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਏ। ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਦੇ ਉਹ ਲਾਲੋ ਲਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲੇ ਜਿੰਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ। 50 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆਖੇ, ਕੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਘੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਪ ਗੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਬ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੀ ਆਵਾਮ ਜੈਸੀ ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਆਮ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਦਰ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਆ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ? ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 300 ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵੇ। 300 ਤੇਲ ਵੀ 300 ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੈਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਧਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਖੂਨੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਯਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੈਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ शहबाज शरीफ ਜਦੋਂ अपोजिशन ਚ ਸੀ। शहबाज शरीफ किया ਸੀ कि मैं हुकूमत के साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब ऐसे बंदे ने वो आज तक पार्लियामेंट नहीं गए, ना रल के बैठ के तैयार ने। ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ तो पता नहीं कादा। सब्र करो। आपका पेट जो है घबराना नहीं है। घबराना नहीं, केवर की मिट्टी भरेगी तो फिर मार दो सारे। ये एटम बम काहदे ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ? कश्मीर वाले तो ਅਸੀਂ हो नहीं सकते तो अपने ਹੁੰਦੇ मारो। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अपना ख्याल रखो जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सलाम क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह शुक्र बनाई रखे और सेहत भी ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। अच्छा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए अभी वक्त पे? नौबत में वो नहीं जाने, जरा आराम हो जाएगा, बेहतर है कि वादी रहे तो लोग जरा आराम हो जाएगा, अच्छा, आराम हो जाएगा, बेहतर। बेहतर आ जाएगा। तो ये आराम अभी इलेक्शनों के बगैर क्यों नहीं होने दे रहे हमारे साथ?
बस लोग यही आवाज दे रहे, कुर्सी के मगर लगाए आवाज दे रहे तो आपको क्या लगता है सच नहीं है ये? सच ही ना। कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। महंगाई इतनी हो गई है, मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, डॉलर 300 पे चला गया, पेट्रोल 300 पे चला गया है। इस दौरान हमारे जो खान साहब हैं वो कह रहे हैं 2 सूबों में इलेक्शन कराओ और 60 अरब रुपया इलेक्शनों पे लगाओ। सब कुछ आवाज दे रहे तो, गरीब के लिए आवाज दे रहे तो। इनको नहीं कोई सोच। मुश्किल है गरीब के लिए, मुश्किल है। आपको क्या लगता है फायदा होगा इलेक्शन वक्त पे होने का या नुकसान हो? ये और मालूम नहीं आवाज दे रहे तो फायदा होगा। शायद पैदा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं फायदा हो, चाहे जैसे मर्जी हो फायदा हो। हम तो दुआ ही मांगते हैं, हम तो दुआ मांगते हैं बेहतर हो जाए। कबूल करेगा जी इंशाल्लाह, आप दुआ मांगते रहे, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपको क्या लगता है भाईजान, किसके बारे में? इलेक्शन 30 अप्रैल को सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है, 30 अप्रैल को होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन पहले तो मुल्क के हालात सही कर दे, फिर इलेक्शन की तरफ जाए। ज़बरदस्त। ठीक है ना, अगर मुल्क के हालात ख़राब है उधर इलेक्शन, ये तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से? 60 अरब लगना है 2 सूबों पे से। जितना भी लगना, 60 अरब लगे, 70 अरब लगे, लेकिन बहुत होता है 60 अरब। पहला मुल्क के हालात हो, वही पैसे आवाम पे के ऊपर लगाए, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ भी चले। स्टोर पे इन्होंने पेट्रोल और महंगा कर दिया है, 60 अरब कहाँ से लगाएंगे अवाम पे? पेट्रोल कह रहा हूँ, सॉरी, घी और महंगा कर दिया है, 150 रुपये हो गया पेट्रोल। असल में सबसे ज़्यादा मुतासिर पेट्रोल से मैं हो रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख पेट्रोल का, मेरे मुंह से घी की जगह भी पेट्रोल निकल रहा है। पेट्रोल महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया जी, 150 रुपये यूटिलिटी स्टोर पे। बहुत ज्यादती की उन्होंने कि 150 रुपये किलो महंगा। यूटिलिटी स्टोर पे जो मिलता है वो यूटिलिटी स्टोर पे उन्होंने महंगा कर दिया, लेकिन इनको शर्म तो आनी चाहिए ना, जिनकी गवर्नमेंट है। शर्म इनकी सो गई है, मर गई है। नहीं मर गई, अवाम की भी मर गई सारी, हुक्मरानों की तो मर गई, तो अवाम निकले बाहर, जो अवाम बाहर निकले सड़कों पे, तो देख लो कैसे सब कुछ आ जाता अपनी जगह पे। ठीक है ना, ये यानी कि आप कह रहे हैं इलेक्शन वक्त पे ना हो तो बेहतर है, पहले मुल्क की कुछ बेहतरी की जाए फिर इलेक्शन पे। हाँ, मुल्क के लिए बेहतर सोचे तो फिर इलेक्शनों की तरफ जाए। इलेक्शन तो कहीं ना हमने जाना ना इलेक्शन ने जाना, ऐसे ही है, हाँ, कहीं इधर ही रहना ना, पहले तो मुल्क के हालात ठीक करे, फिर उसके बाद। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं जी ये? बस इन्होंने क्या कहा ये आपने सुना और उसने कहा, हमने कहा मैं क्या। आपने नहीं सुना? वो कह रहे हैं इलेक्शन, अभी ये इलेक्शन होने लगे ना 30 अप्रैल को 2 सूबों में, वो कह रहे हैं नहीं होने चाहिए अभी, पहले मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। भाई इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात सही होंगे ना। इन 2 सूबों के इलेक्शन होने से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे आपको लगता है? भाई इंशाल्लाह ठीक होंगे, क्यों नहीं होंगे। कैसे ऐसे होंगे कि अवाम ये हुकूमत मानती नहीं है। हालात कैसे ठीक हो? हालात ऐसे ही ठीक होंगे, ये इलेक्शन होंगे, अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी, काम चल पड़ेंगे। अफरा तफरी खत्म हो जाएगी, काम चल पड़ेंगे, उन्हीं 2 सूबों में जहाँ पे पहले खान साहब की हुकूमत थी वहाँ पे वापस खान साहब की हुकूमत आ जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा मुल्क को? फ़ायदा ये होगा कि अवाम ये चाहती है कि खान साहब हुकूमत करे। 2 सूबों में? 2 सूबों में नहीं, सारे मुल्क में, हर जगह आप देखो। इलेक्शन तो सिर्फ 2 सूबों में हो रहे हैं ना? तो 2 में हो रहे हैं, 2 में होंगे तो फिर आगे और में भी हो जाएंगे, 2 में उन्हें पता लग जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। ये एक और भाईजान हमारे साथ जो मौजूद थे, इनके मुताबिक इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? वालेकुम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वर्कशॉप पे काम करते हैं? जी जी गाड़ियों का सामान बड़ा महंगा हो गया सर, देखिए ना, जब से हुकूमत अदल बदल हुई है ना, हमारा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। क्या करें, गरीब लोग क्या करें, गाड़ी जिसके पास गाड़ी है, पेट्रोल बहुत महंगा है, बंदा क्या करे। अब आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल डालेंगे आप, अब महंगा ही बड़ा हो गया। अब साइकिल निकालें, पुराना दौर दोबारा फिर ले आए। आपको कैसे पता? मैंने साइकिल ले ली है कुछ दिन पहले। देखे ना, यही तो बात है ना, जिसको काम मैं करता हूँ डेडनिंग का, मिसाला बहुत महंगा, जैसे वेल्डिंग हम करते हैं ना, वो कम से कम 900 रुपये किलो हो गया, और जहाँ 200 रुपये किलो था, तो क्या करें हम? का कस्टमर पैसे नहीं खर्च करता, वो कहते इतने पैसे, वो क्या करे बंदा, किस जगह पे जाए, किससे मांगे बंदा, उनको सीट के परे हुई है। अब वोट आने हैं, वोट डालो, मोर लाई जाओ, किसके क्या करे बंदा? गालियाँ नहीं हमने इनको दी ना, ये बात किया है कि अब कह रहे इंडिया मदद करेगा, और कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा, इंडिया की मदद करेगा सर, कोई ही बंदा मदद नहीं करेगा जब तक सियासतदान खुद सही नहीं होगा ना। हमारा मुल्क इस्लामी है, तो वो कैसे मदद करेगा? आज तक उन्होंने क्या, कुर्सी की जंग है, कुर्सी की लालच है, कुर्सी की लड़ाई कुछ ही नहीं है सर, ये सिर्फ दुनिया को, अवाम को बेवकूफ़ बना हुआ है। और वोट डाल दो, MNP आएगा, सलाम का साथ कैसे हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा। वोट आके 200 बाद गैप कुछ ही नहीं। अब इमरान खान आया था, हमने कहा इमरान खान आएगा तो खुशहाली आएगी, क्या किया उसने? इनाम खा गया, इनाम मिले थे उसको, क्या उसने किया? अब ये क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रही हैं, क्या कर सर, ये इन्होंने कि ना
गरीब के लिए क्या कर रहे हैं? मदारी वाला काम किया, मदारी बांधना चाहने वाला काम है, आवाम पीछे भाग रही है तो हम काम कर रहे हैं बस, और कुछ ही नहीं है, और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कुछ नहीं किया जी, किसी ने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया सर। ये अगर इनको कुछ चाहिए ना तो अमेरिका वगैरह सपोर्ट दे देगा, जो डॉलर वगैरह जो जिसको लेने होते हैं पैसे तो वो मिलेंगे, और कोई नहीं देगा। इसका हल क्या है? हल क्या है? हल यही है, जब तक ये देखे ना जरदारी साहब, वो जरदारी साहब कह रहे हैं मुझे बादशाह बना दो, इमरान खान मुझे बना दो, नवाज शरीफ कहता मुझे बना, अब कौन किसको बनाए हम? अवाम। इसका आसान हल ये है, और इनको अल्लाह हिदायत दे दे, इकट्ठे बैठ के काम कर लें, हमारी बेहतरी के लिए कर लें। इनको सीट मिल जाए बस, सारों को एक एक सीट देते हैं और सारे हमारी बेहतरी के लिए काम सब की बारी आ चुकी है। या सानू लौट के खा जान, या साढ़े वास्ते कोई काम कर। आवाम मार रही है, देखे ना गुर्बत इतनी छाई हुई है, प्याज सब्जी हर चीज़, कुछ भी इंसान भूखा मर रहा है। अब चोरियां डकैतियां आम हो गई हैं, अब देखो ना वारदात बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब ये पुलिस के पास चले जाओ, वो भी माल दो उसको, वो भी दे में, किसी को जान सुकून नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। लेकिन सबसे खुशी की बात पता है क्या है मेरे भाई, कि आप मेहनत का कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, उसमें बरकत है। सारे पैसे भी नहीं देते, कस्टमर कहते हैं इतने पैसे, इतने वो चले जाते हैं, हम क्या करें? हम बच्चे भूखे मारते हैं, हम डाका दें, हम जाते ना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, हम कहते हैं 2000 दे दो, 2000? ओ भाई कि नहीं वो 500 मांग रहा है, ओ भाई किधर जाए हम, किस जगह पर जाएं? पहले इतना मुल्क इतना सुकून था, अमन था, शांति थी, अब कुछ भी नहीं है। अल्लाह सब फिर बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप बड़े अच्छे इंसान हैं जी, खुश रहें। मेहरबानी। आप यहाँ पे सब लोगों को भी हंसा रहे हैं और बातें भी सच्ची कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखें जी। ये जी एक और हमारे साथ शख्स मौजूद थे, मायूस थे, लेकिन मायूसी के आलम में भी उनका अंदाज़ बयान बहुत अच्छा था, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे कस्टमर वर्कशॉप का काम करते हैं, मैकेनिक का, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। कस्टमर आता है, जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा देने से कस्टमर भी घबरा जाता है, महंगाई का ही आलम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन होने जा रहे हैं, 30 अप्रैल को होने चाहिए वक्त पे। सर इलेक्शन तो होने चाहिए, बाकी हम तो कहते हैं ये जितने सियासतदान हैं ना, इनको असम्बली में बिठा के ना ऐसा एक रिमोट होना चाहिए कि सारों को, सब सियासतदान, बीच में शहबाज शरीफ, बीच में नवाज शरीफ, इमरान खान, हमारे लिए कोई भी रिलीव नहीं दे रहा। ऐसी है, ये गौर से सुन लें जी, ये सताई हुई गरीब अवाम, मजबूर अवाम के दिल की आवाज़ सुन लें। वो हालात है ना जी, हम अगर 1000 रुपया लेबर ले रहे हैं ना, हमारे पास कस्टमर आ रहा है, इन हालात में हम कहते हैं यार 500 ही दे दो, बजाय लेबर बढ़ाने के हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए हमें चाहिए कि मजदूरी बढ़ा दें, हर चीज़ का रेट ऊपर चला गया। हम कह रहे हैं यार 1000 मजदूरी या 500 ही दे दो, फारग बैठे हुए हैं, करना तो है ना, बच्चे तो पालने हैं ना जी। ऐसे हमें हुक्मरान सियासतदान नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि रातों रात असम्बली में बैठे हों ये सारे, तो इनको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह इनको हिदायत नहीं देगा? नहीं, इनके हिदायत नहीं आनी, हिदायत इनके नसीबों में है ही नहीं। अल्लाह ने इनकी डोरें जो सी है ना जी, बिल्कुल लूज छोड़ दी हैं। अल्लाह खींचेगा सर इंशाल्लाह। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में खींचेगा कि नहीं खींचेगा, हम खींचे जाएंगे, ये नहीं खींचे जाएंगे। आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रा मायूस तो नहीं होना। बाकी इलेक्शन आप क्या कहते हैं, नहीं होने चाहिए वक्त? इलेक्शन होने, सॉरी अभी 30 अप्रैल को इलेक्शन करेंगे तो फिर आप 60 अरब लगना है इलेक्शन पे, 2 सूबों के सर देखेंगे। अब हमें उम्मीद जो सी है ना इलेक्शनों पे ही है कि इलेक्शन हो तो कोई ना कोई नया हमारे लिए आए। ये 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, तो इन 2 सूबों में मेरे ख्याल से अक्सरियत खान साहब की नज़र आ रही है फिलहाल बज़ाहिर, तो खान साहब की हुकूमत वापस आ जाएगी, उससे मुल्क में क्या बेहतरी हो सकती है? सर देखें आगे खान साहब कितनी दे रहे हैं, की बेहतर किया खान साहब ने क्या किया? ये महंगाई मार्च लेके आ गए हैं, सब मार्च लेके आ गए हैं, किया इन्होंने अपनी अपनी सीटें लेके बैठ गए। आखिर में कहते हैं जेल भर दो। किया अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। अवाम आज जो खज्जल हो रही है ना, ये मार्केट का आप विजिट कर रहे हैं, इतने हालात हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जो बदतरीन हालात इस टाइम हो गए हैं, जो ऐसी हकीकत है, बिल्कुल ऐसी। हम तो हम अपने बच्चे पाल रहे हैं ना, ये हमें पता है कैसे पाल रहे हैं। 1000 रुपया शाम को कमाते नहीं हैं, बाजार जाते हैं 700 रुपये किलो घी है, 700 रुपये किलो घी है। मुर्गा तो पकाने का सोच ही नहीं ना सकते। मुर्गा तो आप छोड़ ही देना जी। हाँ जी, मुर्गे का जो हाल है, महंगाई इस कदर ऊपर है कि गरीब आवाम बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर होगी। भाईजान ठीक कह रहे हैं, सही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी। तो
इस महंगाई के आलम में 2 सूबों में इलेक्शन पे 60 अरब रुपया हमें लगाना चाहिए इस मुल्क को? सर वो हमारे से निकलना ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 60 ਅਰਬ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਾਡੀ ਬੋਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 63000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ 100 ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵੀ 60 ਅਰਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਆਣ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ 500 600 500 600 ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਾਈਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੂਖ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇਗਾ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ चलो जी अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। ये अभी ये जो मरसद शहरी मौजूद थे भाईजान इन्होंने कहा कि इनकी आमदन कितनी है जी वो 600-700 रुपया रोज़ का कमा लेते हैं आमदन इतनी है और इस आमदन में गुजारा करना 5 उन्होंने बताया उनकी बेटियां हैं और घर में ज़ाहिर और भी लोग होंगे 7 अफराद तो सिर्फ 5 बेटियों समेत ही बन जाते हैं लेकिन और भी लोग होंगे उनकी रोज़मर्रा की सिर्फ खाने पीने की ही जो है ख़र्चा निकाल दिया जाए तो इससे ज़्यादा बन जाता है। ये हमारे जो सियासतदान है ना ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जो घूम रहे हैं जिनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है जिनको खाना पीना फ्री मिल रहा है जिनको घर की बिजली फ्री मिल रही है घर फ्री मिल रहे हैं ये जो जेल भरो तहरीक के नाम पे तमाशा शुरू कर देते हैं या फिर ये जो है लाहौर को पेरिस बनाने के नाम पे या नया पाकिस्तान बनाने के नाम पे इन्होंने ड्रामे शुरू किए हुए हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप ना नया पाकिस्तान बनाएं ना इसको पेरिस बनाएं आप इसको पाकिस्तान ही रहने दें और आप इस पाकिस्तान में इस तरह के गरीब इंसान की तरह आके इतनी सी आमदन में एक दिन अपने घर का खर्चा चला के दिखाएं। अगर आप एक दिन अपने घर का खर्चा एक दिन का चला लेंगे इतनी आमदन में 600-700 रुपये में तो ये सारे गरीब खुश हो जाएंगे। आप चला के दिखाएं। ये आपको हिदायत आपको अकल सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि आप एक गरीब की जितना मुआवजा अपना रखें और उस तरह चला के दिखाएं। खैर और शहरियों से बात करते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। एक और मरसद जी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिबास आपने पहना हुआ है खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह करम अल्लाह खूबसूरत उसका रसूल खूबसूरत हम तो बस माशाल्लाह बेशक 100% ऐसी है। अच्छा सर मुझे ये बताएं जो महंगाई का आलम हुआ पड़ा है इस महंगाई के आलम में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन तो होने चाहिए ना 30 अप्रैल को कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन हो जाते हैं बाकी कौम की तकदीर 60 अरब लगेगा इन 2 सूबों के इलेक्शन आगे इतनी लूट मार हो चुकी है अगर कौम के लिए कुछ लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा 60 अरब। अभी जो महंगाई का आलम हुआ हुआ है इसमें कौम के लिए 60 अरब फर्ज करें लगा लेते हैं कोई बात नहीं कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पहले ही दे रही कुर्बानी पहले कौन सा कौम कुर्बानियाँ ही दे रही है कौम करती की भी है कुर्बानियाँ तो कुर्बानियाँ 1947 तो लेकर आज तक कुर्बानियाँ देने में अयाशियाँ की हैं अयाशियाँ की हैं कौम ने कुर्बानी दी है ऐसे ही है बेशक ऐसे ही है। अच्छा मुझे अब ये बताएं सर अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाते हैं कुर्बानी अवाम दोबारा एक दफ़ा फिर दे देती है 60 अरब लग जाते हैं इन 2 सूबों में
अक्सरियत आ जाती है, लेट सपोज खान साहब की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया इलेक्शंस का, खान साहब की अक्सरियत आ जाती है फ़र्ज़ करें इन दोनों सूबों में, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा कम से कम ये होगा कि उसके 4 महीने बाद 5 महीने बाद तो मेन इलेक्शन आ जाना, तो इंशाल्लाह ताला उस पर फिर सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्ट यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब 4-5 माह बाद मेन इलेक्शन हो जाने हैं, तो उससे कुछ माह पहले, 4-5 माह भी अब ज़्यादा आ गए थोड़े, उससे 2-3 माह पहले 2 सूबों में इलेक्शन करवा के पैसा लगा के क्या फ़ायदा होगा मुल्क को? मुल्क को फ़ायदा तो आज तक मुल्क का फ़ायदा तो देखा किसी ने नहीं है ना, मतलब तो सर अगर किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो उस पर 60,000 क्यों, 60 कि ये जो 60 अरब क्यों? जो असेंबली इस वक्त जो हुकूमत है, ये इसकी तो वैल्यू कोई नहीं है ना भाई। कौमी जो सूबाई असम्बलीज हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ इस वक्त करप्शन इतने अरूज पर है, तो बकिया जो अभी इलेक्शन कमीशन का कोई सर पैर नहीं है, और मामला जो आपके वज़ीर आला साहब हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जो बाकी इदारे रह गए उनका भी अगर भट्टा चौड़ करना है तो 3 महीने और लगा दो। अच्छा, तो अगर लेट से वो इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा सिर्फ खान साहब को ही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या बाकी पार्टियों को भी होगा? सर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इलेक्शन के लिहाज से, अक्सरियत के लिहाज से कह रहा हूँ, बाकी किसी पार्टी को होगा फ़ायदा? जिसने अपना कुछ कौम को दिया, आवाम को दिया, उसका ही फ़ायदा होगा ना, मतलब, और सिर्फ बेसिक पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। भाई 160 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये पेट्रोल था उस वक्त, सॉरी 150 रहा, तो ये तो सस्ता करने आया था, 300 पे पहुँचा दिया इन्होंने। डॉलर कहाँ था, 170 रुपये था, 300 पे डॉलर चला गया। सबसे ज़्यादा दुखी मुझे सर पेट्रोल का, मैं सीधी सी बात देखिए ना कि हम तो वो समय वो स्पीड वज़ीर आला थे नाबेली, जहाँ हर काम, वो तो नाकाम नाहल तरीन वज़ीर आज़म बन गए, मतलब कौम की बेड़ा गर्क करके रख दिया, मतलब वो कपड़े। फिर बेहतर कौन है, बेहतर कौन है? खान साहब को आजमाया, वो भी वैसे ही निकले। खान साहब को आजमाया नहीं है हमने, खान साहब को आजमाने कहाँ दिया है? खान साहब आज होते ना, 4 साल रहे हैं खान साहब। सर 4 साल कौन सा रहे हैं? ये 4 साल में क्या, खान साहब आज होते ना तो ये पेट्रोल नीचे होना था। मुआहदे तो खान साहब वाले हैं ना सर। मुआहदे खान साहब वाले, मुआहदे खान साहब ने कौन से उसके लिए थे? अगर आप पेट्रोल सस्ता किया था खान साहब ने, तो आवाम के लिए सस्ता किया था, अपनी जेब में डालने के लिए नहीं किया। ये तो वो पाकिस्तान के सिर्फ 2 वाहिद सियासतदान हैं, मियाँ साहब को थोड़ी कुर्बानी देना, अपनी जायदाद में पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दें। मियाँ से पहला कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला और दूसरा इमरान खान, जिसने अपनी टोटल प्रॉपर्टी जो है ना वो खिदमत के लिए वक्फ कर दी है, कर दी हुई है, कर दी हुई है। बनी पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। बनी गाला भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शौकत खानम के नाम है, कौम के नाम है, तो खुदा का खौफ करें, ये जान छुड़वा दें हमारी बस। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से आप दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। करने वाला बंदे की औकात। बेशक ऐसी, बेशक बेशक। ये जी अभी जो आखिरी शरी में मिले हैं, इनका ये मानना है कि इलेक्शन होने चाहिए अभी, और इलेक्शन का फ़ायदा होगा मुल्क को। कैसे होगा ये उनको भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि होगा, उनका मानना है कि इलेक्शन का फ़ायदा होगा मुल्क को। 30 अप्रैल को इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, अब देखते हैं ये 30 अप्रैल के बाद क्या नतीजा निकलता है। और ये महंगाई के सताए हुए जो अवाम है, ये महंगाई के सताए हुए अवाम और गुर्बत के सताए हुए जो अवाम है, इनको क्या फ़ायदा होता है इन 2 सूबों में इलेक्शन होने से, ये भी वक्त के साथ देखते हैं। तो आज का हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।